Okay, hello, good morning, Amit sir. Good morning. How are you? I'm fine. How are you doing? Sir, fine here. Yeah, well, I can see that medals behind. Wow. Yeah, you are a marathoner and cyclist. That's really a good one collection. I think more might be there. That's really nice. So, before we move further, let me quickly introduce our today's guest. Today, we are having author Amit Dev with us. After the successful completion of his first book, Friendship with Fitness, so he has now released his second book, Dare to Dream. And it's also something a motivational and insightful book, which we will not discuss now. Just we'll go further with the interview and discuss this later about. So, Amit sir, firstly, quickly introduce yourself to all the viewers out there. Thank you, ma'am. First of all, I would like to say thanks for inviting me, for giving me the My pleasure. opportunity to, yeah, to share my thoughts and to share about my book, which I have written. This is my second book. My first book was Friendship with Fitness, and the second book is Dare to Dream, which is volume one. Both the books are available in Amazon and Flipkart. Basically, let me introduce myself. I am basically a mechanical engineer by profession, and fitness is my passion. So I am a marathon runner, YouTuber, blogger, and ultimately an author. Yeah. And unfortunately, I'm having friendship with fitness here. No worries, Yes. no worries. Okay. Sure. That's really Dare to nice. dream. Yeah. And Dare to Design with Sir, this is Friendship with Fitness. So, yeah, both the books in one frame. Yes. So, so being into a marathoner, a cyclist, and an engineer, how did you thought of becoming an author? Well, the journey started during COVID only because जिस समय मैंने देखा था कि लोगों ने वर्कआउट करना बंद कर दिया था, जिम्स वर हाँ क्लोज्ड, जी, हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे, और कोविड का जो मेन जो पार्ट था, दैट वाज बेसिकली इम्यून सिस्टम. सो तो आइडिया वाज सी हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम विदाउट गोइंग टू द जिम. सो correct. वो थॉट मेरा उस समय आया हुआ था, तो मैंने वो कोशिश किया कि कुछ किया जाए कि घर पे बैठ के अपने आप को फिट रखना है. तो विदाउट गोइंग टू द जिम वी कैन डू any sort of exercise with home objects also. Like you can do workout with the water bottle as well, then with the towel also, then with the help of books also. All these things are available in my YouTube channel. So basically जो thought process था वहीं से start हुआ था. मैंने workout करना चालू किया, तो धीरे धीरे मैंने इंस्टा में, फेसबुक में डालना चालू किया. देन माई डॉटर टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू ओपन ए यूट्यूब चैनल. तो मैंने बोला उससे क्या होगा, मुझे पता ही नहीं था उस समय यूट्यूब चैनल के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रेंक. तो मेरे डॉटर ने ही यूट्यूब चैनल मेरा खोल दिया था, तो मैंने धीरे धीरे डालना चालू किया, ताकि जस्ट मोटिव वाज जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फिटनेस. तब फिर धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट होने लगा, तब मैंने जो अपने जो बेसिक वर्कआउट्स जैसे होते हैं, जैसे डंबल्स वगैरह हो गए, वो धीरे धीरे मैंने खरीद के अपने घर पे ही मैंने होम जिम बना लिया था. तो किस तरीके से अपने आप को घर पे रह के आपको फिट रखना है, तो उस तरीके से ये प्रोसेस चालू हुआ था. तब फिर मैंने धीरे धीरे अपना ब्लॉग्स लिखना चालू किया, जो भी वर्कआउट रिलेटेड है या ड्रिंक्स रिलेटेड है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट रिलेटेड है, वो मैंने ब्लॉग्स लिखना चालू किया. तब मेरे थॉट में आया कि क्यों ना एक किताब लिखा जाए. तब Wow. हाँ, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं कुछ लिख डालूंगा. तो धीरे धीरे मैं लिखता गया. जो भी मेरे इस दौरान मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस गेन किया, तो उस तरीके से मैंने वो किताब लिख डाला था. फ्रेंडशिप विद फिटनेस था उस किताब का नाम. उसमें आपको जितने भी वर्कआउट है होम ऑब्जेक्ट्स की तरह, उसके बाद डंबल्स की तरह, एब्स की एक्सरसाइज, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, इवन मेल हो गए, फीमेल हो गए, एट एनी एज कैटेगरी के लोग से थोड़े थोड़े इंस्पिरेशनल थॉट्स, थोड़े थोड़े इंस्पिरेशनल स्टोरीज थे. तो उस तरीके से मेरा ये जो जर्नी था ये स्टार्ट हुआ था. उसके बाद फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि फ्रेंडशिप विद फिटनेस मतलब अच्छी किताब है, आपको एक सेकंड किताब लिखना चाहिए था. देन आई रोट दिस बुक डेयर टू ड्रीम.
वाओ, दैट्स अ वंडरफुल जर्नी। एंड जैसे आपने कहा है, लाइक कोविड ने सबको बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, लोग मोटिवेट भी हुए हैं। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, आपकी बेटी ने यूट्यूब चैनल आपको खोलने के लिए कहा, तो इट्स लाइक कोविड टाइम हैज गिवन पीपल द प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्व्स। और जो हमारे अंदर अननोन क्वालिटीज है, जो हम लोगों से नहीं शेयर कर सकते, वो हम कर पाए हैं। एंड इट्स रियली नाइस कि आपने अपने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं एंड यूट्यूब पे डाले। दैट्स रियली नाइस। आप पीपल व्यूअर्स आउट देयर, यू कैन गो एंड जस्ट विजिट सर्स वीडियोस एंड yes, without do going to gym, what exercises you can do to be fit and stay fit, you can follow sir's channel over there. And thanks, sir, for bringing out the book Friendship with Fitness, because that's really motivating one for each and every people out there. And Dare to Design is also not less motivational, because I've seen the way you have collected and researched about all the sports personalities, rather it be national or international, known to us or unknown to us. You have done so much of research about them, their struggle, their life, how they become successful. It takes a lot of time to do such things. So क्या क्या आपने लाइक प्रॉब्लम्स आपको हुई, या क्या क्या डिफिकल्टीज आपने देखी जब आप ये रिसर्च कर रहे थे और ये बुक लिख रहे थे? सी बेसिकली जो डेयर टू ड्रीम है, इट्स द बुक इज अबाउट द स्ट्रगलिंग स्टोरीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। कुछ लोगों ने सक्सेस किया है, कुछ लोगों ने फेलियर्स भी ये किया हुआ है। तो इसका मतलब जिन्होंने सक्सेस किया वो मतलब नंबर वन नहीं है। जो फेलियर्स है वो एक्चुअली अपने आप को फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेलियर है जस्ट उसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। तो उस तरीके से मतलब इस बुक में 26 स्टोरीज है, छोटी सी किताब है। इस पे मैंने रिसर्च किया था कि डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे रेसलिंग हो गए, बॉक्सिंग हो गए, एथलेटिक्स हो गए, हॉकी हो गए, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने वो किया था। तो दो स्टोरीज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक है सर, योर प्लेटफॉर्म, प्लीज करिए, कोई बात नहीं, हमारा ही या, टाइम है। एक है आपका डेरेक रेडमोंड है, जिन्होंने उनके जो वीडियोस है आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। बड़ा इंस्पिरेशनल है वो स्टोरी। उनका वो सेमीफाइनल था, बार्सिलोना ओलंपिक था, 400 मीटर का स्प्रिंट था। सो जो 200 मीटर है, 200 मीटर के बाद उनके हैमस्ट्रिंग पुल हो गए थे। तो जो फेलो कंटेस्टेंट थे, ऑल ऑफ देम हैव रीच्ड एंड रेस वाज फिनिश्ड। बट उसने क्या किया कि उस रेस को फिनिश करने के लिए बिल्कुल ही वाज लिंपिंग। उसके बाद उसके फादर रहे, शोल्डर में हाथ रख के उनको पूरा फिनिश लाइन तक लेके गए। मतलब बड़ा पेनफुल जर्नी था, बट हिज मोटिव वाज जस्ट टू क्रॉस दैट फिनिश लाइन। वो जो करेज है, सो करेज, यू कैनॉट मेजर करेज, यू कैन मेजर स्पीड, यू कैन मेजर स्ट्रेंथ इन पाउंड्स, बट यू कैन नॉट मेजर करेज। वो जो करेज था, वो जो विल पावर था, वो जो डेडिकेशन था, वो जो डिसिप्लिन था, उनकी आंखों में दिख रहा था। वो रो रहे थे, उसके फादर भी रो रहे थे, बट इवन दो बोथ ऑफ देम, फादर एंड सन, फिनिश्ड एंड क्रॉस द लाइन। मतलब वो अगर आप वीडियो देखेंगे ना, रियली मतलब मैं अभी भी मतलब मैं उसमें वो आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। रियली ओह, बहुत ही इंस्पिरेशनल था, इसलिए मैंने उस किताब को के बारे में लिखा हुआ है। एक और सज्जन थे, डेव होटल। उनका 800 मीटर का फाइनल रेस था। एक व्हाइट कलर का कैप पहना हुआ, उनका भी है यूट्यूब चैनल पे। म्यूनिक ओलंपिक्स था वो, 800 मीटर का रेस था। तो जब रेस स्टार्ट हुआ, वो करीब करीब 200-300 मीटर पीछे थे। मतलब नो बॉडी थॉट कि ही इज गोइंग टू विन दैट टाइटल। लेकिन उनका जो सेल्फ बिलीफ था कि मुझे करना है, उस लाइन तक पहुंचना है, मेरे आगे जो 6-7 कंटेस्टेंट हैं उनको क्रॉस करना है, वो जो विल पावर है ना, जो लास्ट के जो 300 मीटर्स है, उन्होंने इतना जबरदस्त, बिल्कुल बोलता है ना डू और डाई, मुझे करना है। वो सारे कंटेस्टेंट को क्रॉस करने के बाद उस टाइटल को उन्होंने जीता है। मतलब वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल। तो मेरा जो इस किताब में है और भी इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज है, उसमें दीपिका कुमारी के बारे में लिखा हुआ है, बॉक्सर के बारे में लिखा हुआ है, जो डिंगो सिंह बॉक्सर जो आज हमारे बीच में है नहीं, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज है। मैं लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम आपको
करना है, अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम हमेशा पैसों के बारे में चिंता करते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो इन्वेस्ट अगर करना है ना, तो ये जो भगवान ने जो दिया है ना, इस पे इन्वेस्ट करो। वरना जो पैसा है आपका रिटायरमेंट इसी पे ही निकल जाएगा, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो लोगों के पास जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप देखिए, व्हाट्सएप देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने बॉडी को ख्याल रखने के लिए 30 to 40 मिनट्स आपको निकलना है, बी इट इन द मॉर्निंग, बी इट इन द इवनिंग। मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। Yeah, that's perfectly true, and absolutely I agree with that statement because whatever is left, ये body ही है जो हमें last तक helpful रहेगी. We say कि family, relatives, they all are with us. Yes, they are. But if we are not fit, how will be in our family? How will be a part of our family? नहीं तो हर एक जन बीमार रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी इन एवरीथिंग. सो ये आपका बहुत ही अच्छा मोटिव है जो आप ये बुक के थ्रू लाना चाहते हैं लोगों के सामने कि आप हेल्दी रहिए और अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दीजिए, बिकॉज स्टेइंग फिट ही आपको आगे तक और लाइफ देगा एंड आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में. दैट्स रियली नाइस मोटिवेशन सर, गिवन टू एवरीवन. थैंक यू. So people out there, Dare to Dream is available on Amazon. Please go and purchase it and don't wait, because if you want to get motivated, read the stories and the struggles done by other people and other personalities. And yes, सर ने भी अपने बारे में अपना स्ट्रगल वहां लिखा है. तो मैं बोलूं इससे पहले मैं सर से कहना चाहती हूँ कि आपका जो स्ट्रगल आपने बुक में मेंशन किया है वो व्यूअर्स के सामने आप प्लीज बताइए. जो फर्स्ट स्ट्रगल था वो मैंने मेंशन किया था, फ्रेंडशिप विद फिटनेस. जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी था वो मैंने इस बुक में मेंशन किया हुआ है. तो जो फर्स्ट स्ट्रगल था, एक्चुअली मैं बचपन से ही जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब मैं दौड़ता था. तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि खेल कूद में क्या रखा हुआ है, पढ़ाई करो. फिर मैंने मेरे इंजीनियरिंग में डाल दिया. मेरे इंजीनियरिंग में बिल्कुल ही मन नहीं था, बिल्कुल जबरदस्ती मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया. तो लेकिन दिल के कोने में ना कुछ एक छुपा हुआ था कि कुछ करना है. तो इट वाज ड्यूरिंग 2011-12 व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद फैटी लिवर, देन ट्राइग्लिसराइड्स. उसके ओ. बाद हाई बीपी हो गया था. फिर डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ कीजिए. फिर धीरे धीरे मैंने वो सारे एक्सरसाइजेस करना चालू किया. देन इन 2013 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन. उसमें जाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोगों ने बोला कि हाफ मैराथन. तो मैंने पूछा था कि ये है क्या. वो बोला कि 21.1 किलोमीटर है. मैंने बोला ये तो कभी किया ही नहीं मैंने. तो फिर लोगों ने बोला कि चलो, फ्रेंड्स भी थे, हंसी मजाक में मैंने पार्टिसिपेट कर दिया. सो आई वाज अलॉटेड इन एफ कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी के होते हैं उसमें. तो सब लोग निकल के रन स्टार्ट हुआ, मैं करता गया. फिर जब मैंने फिनिश लाइन क्रॉस किया 21 किलोमीटर, मेरा टाइमिंग था 2 hours 36 minutes. ओह वाओ. तो 2 hours 36 minutes. तो फिर लोगों ने बोला कि, फिर मैंने अपने फेलो कंटेस्टेंट के जो अपने दोस्त लोग हैं उनका भी टाइमिंग देखा. तो फिर दौड़ते समय मैंने देखा कि जो मेरे जो ओल्ड एज है, जो फैटी लोग हैं, वो मेरे से अच्छा टाइमिंग है उनका. 2 hours 20 minutes, 2 hours 10 minutes, 2 hours 5 minutes. तब जब मैं घर पे आया तो मेरा दिल में फील हुआ कि मतलब ये लोग मतलब ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज आई वाज आल्सो एन एथलीट. तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो फिर मैं एक के बाद एक मैं मैराथन करता गया. तो 2 hours 36 minutes को आई ब्रॉट इट डाउन टू 1 hour 40 minutes. वाओ. तो अभी तक दैट्स रियली नाइस. मोर देन 40 हाफ मैराथन मैं कर चुका हूँ. और टाइम 10 के जो है, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 25. तो ओह. ये था मेरा जर्नी, फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि जब मैं स्पीड ड्रिल्स कर रहा था, रिगोरस थोड़ा सा ट्रेनिंग हो गया था, उसके बाद मेरा जो लेफ्ट फुट में कुछ अचलिस टेंडन है, उसमें प्रॉब्लम हो गया था. सो आई टूक द हेल्प ऑफ परफेक्ट नहीं है स्पोर्ट्स एथोस करके, वहां पे मैं गया. तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मिसेस पढ़ी थी, उन्होंने मेरे को हेल्प किया. फिर यहाँ पे एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन है, वो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, उन्होंने मुझे हेल्प किया. फिर मैं कम बैक करके आज मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो ये जो दो स्टोरीज है, तो ये दोनों किताब में मेरा मेंशन है. लेकिन इस स्टोरीज के पीछे बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे फेलियर्स छुपे हुए हैं जो लोगों को दिखता नहीं है, ओनली आई कैन फील.
तो लोगों को मेरा कहना ये है कि हार नहीं है, और अपने Yes. डिक्शनरी से नो, एन ओ नो, बिग नो जो है वो निकाल दो, YES, यस लिखो, यस आई कैन डू, वी कैन डू, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड इवन यू कैन से आई एम पॉसिबल। तो वो चीज दिमाग में रख के, यहाँ पे कंट्रोल है सब कुछ। अगर ये स्ट्रांग है, वी कैन डू एनी डैम थिंग एंड वी कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Wow, wonderful motivational and insightful lines shared to the viewers and especially the aspirants out there, the young readers who want to just become motivated and get some motivation from others. But somewhere or the other उनमें वो motivation lack होता है, क्योंकि जो एक young mind होता है बहुत ही वी से ना एकदम चुलबुला होता है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं होता है। एंड आपकी बुक्स के थ्रू आई विश दैट दे रीच द गोल व्हाट दे वांट, बिकॉज स्ट्रगल सब देखते हैं लाइफ में, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या कोई बहुत बुजुर्ग या हम जैसे लोग क्यों ना हो, बट उस स्ट्रगल को नो से यस में कैसे कन्वर्ट करना है, लाइक यू सेड, दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। सर ने ही जिस तरीके से पहले 2 आवर्स का रिकॉर्ड अपना ब्रेक करके 1 hour 40 minutes में किया है, सो लाइक इट्स अनबिलीवेबल। एंड सर लुक सो एक्टिव, आई हैव सीन हिज इंस्टाग्राम पेज, आई वाज लाइक एकदम एक्टिवली ही posts all the pictures and that running posts and everything, doing exercise and different poses। तो सर कर सकते तो हम क्यों नहीं? तो व्यूअर्स, हमें भी सर से मोटिवेशन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, हमें उनसे मोटिवेशन लेके कुछ बनना चाहिए लाइफ में। दैट्स रियली नाइस वर्क यू आर डूइंग। जैसे सर आप कह रहे हैं आप बचपन से ही 100 मीटर 200 मीटर दिस ऑल रेसेस यू हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एंड ऑल, so till now how many medals and trophies you have collected in your like house, You can everything? you can you can see behind the so many medals. It's almost more than 45 medals over there. Wow. It includes half marathon, 10K, and you can see the Cups are there. trophies as well. Yeah. Yeah, trophies, cups and all, that's really Yeah. nice, sir. So what are you planning like in future to participate more in marathons or go somewhere to participate more? See, basically, right now, I don't have any planning, but definitely I want to do Ironman, Oh. at least one Ironman in my life. So that's my motive, and I'm sure I will do it. One, I will sure. I'm sure I will do it. Best wishes for that, and we are eagerly waiting for that, so that you post soon that yes, I've done that Ironman and I have accomplished it. That's really nice. So see, sir has also made his goal and his motivation for YES, yes। जैसे कहते हैं ना, देर नहीं हुई है, अब बस सवेरा ही हुआ है। तो प्लीज आप भी उठिए व्यूअर्स एंड करके दिखाइए कुछ। ये सर एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हम हमेशा सोचते हैं कल से करते हैं, हम कल से करते हैं, बट वो कल आता ही नहीं है एंड वी आर लाइक हम तो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। सो आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस लाइव वीडियो के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर पाए, एंड जो लोग अभी भी मतलब वो फैट एंड ओबेसिटी के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम्स एंड बीमारियां झेल रहे, सो दे स्टार्ट डूइंग द वर्कआउट्स एंड स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड बाय यू। एंड यस, डोंट हेजिटेट, सर को आप डीएम कीजिए कुछ, अगर आपको योगा या कुछ एक्सरसाइज या फिटनेस के बारे में जानना है, सो ही विल हेल्प यू आउट। सो दैट्स रियली नाइस ऑफ यू सर टू ब्रिंग सच बुक इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स। बट ओवरऑल सर, जब आपने ये दोनों बुक लिखी तो आपने इसमें से क्या सीखा? मैंने इसमें से यही सीखा, कुछ भी काम करो, उस पे लोग क्या होते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे। आज किया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद रिजल्ट देखना चालू हो जाते हैं, 1 महीने बाद फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। तो लोग बहुत जल्दी ना, उनको चाहिए रिजल्ट, शॉर्टकट मेथड्स, लेकिन शॉर्टकट मेथड्स सक्सेस नहीं होते। You need to trust the process, plan for it, work on it, then go for execution. फेल हुए हैं तो दोबारा जीरो से स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करना ही चाहिए। और जो शॉर्टकट मेथड्स है उसको प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, शॉर्टकट मेथड्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है लोगों को सबसे पहले जिम में जाते ही बड़े बड़े डंबल्स लगा के बिल्कुल बाइसेप्स बनाने चलते हैं, ट्राइसेप बनाने चलते हैं। जो छोटे वाले डंबल से उनको अवॉइड करते हैं, बड़े डंबल से आपके
मसल्स नहीं बनेंगे। मसल इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जो फिटनेस है, फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास एब्स हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो। फिटनेस का मतलब है इनर, जो आपके बॉडी के अंदर, इफ यू आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, आप फिट हो। मतलब ये मतलब नहीं है कि बाइसेप ट्राइसेप जिनके पास है वही फिट है। हो सकता है उनके पास ब्लड शुगर हो, उनके बॉडी में ब्लड बीपी हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह है जो बाजार में मिलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लीजिए, लेकिन अगर लेना है तो किसी अच्छे जगह से, जो अच्छे जिम है, अच्छे किसी जो ट्रेनर है, उनसे ही एडवाइस करके ये सब लीजिए। मतलब ये प्रोडक्ट आप वहाँ पे गूगल में देख के अपना दिमाग से वो सब मत कीजिए। कोई अच्छे ट्रेनर से ही जो रिकमेंड करे उनसे ही लीजिए, क्योंकि आजकल डिजीज एक ऐसा चीज है, किसी भी चीज से आपके बॉडी में आ सकते हैं। तो अगर करेक्ट। लेना है तो अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, बट जो इनर फिटनेस है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन बाइसेप ट्राइसेप्स एंड सिक्स पैक एब्स। सिक्स पैक से कुछ नहीं होने वाला। या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज यह हम कहते हैं कि जिम ही सब कुछ नहीं है, योगा से भी बहुत कुछ होता है। जैसे श्वसन क्रिया, मेडिटेशन, एवरीथिंग हेल्प्स यू आउट टू गिव यू द इनर पीस एंड इनर साइलेंस ऑफ योर सोल। वो ही आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा नीडेड है। खा खाना खा के भी लोग वेट कम करते हैं, एंड वी बस। फील कि यार भूखे रह के ही सिर्फ वेट कम होता है। तो दैट्स जस्ट मिथ एवरीवन। तो अपने मिथ को चेंज कीजिए, एंड जैसे सर ने कहा, फर्स्ट वर्क ऑन द प्रोसेस, प्लान इट एंड देन एग्जीक्यूट इट, सो दैट शुड बी द मोटो ऑफ एवरीवन्स लाइफ। So sir, when are you writing the third book? A third book I have already written and it's completed. Maybe Wow. in the month of maybe in the month of July I'm going to release it, and it's Dare to Dream. It's volume 2. उस बुक में मैंने जो इतने भी पैरा ओलंपियंस है उनके बारे में लिखा हुआ है कि अगर वो कर सकते हैं, जिनके पास एक हाथ नहीं है, जिनके पास एक पैर नहीं है, किसी के बैक में प्रॉब्लम है, अगर वो कर सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, भगवान ने दिया हुआ है, तो व्हाई Correct. कांट वी। हम हमें किस बात के इंतजार है? हम क्यों एक्सक्यूज देते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं? वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि हमें सब कुछ दिया हुआ है, वी शुड डू इट। तो वो Yes. किताब में वो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्पेक्टेटर्स को, जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उनको पसंद आएंगे। सो डेफिनेटली जुलाई अगस्त में वो किताब रिलीज होने वाला है। Wow. So viewers, this is not the first and the last interview. अभी और भी सर के साथ लाइव इंटरव्यूज आने बाकी है। सर और मोटिवेट करेंगे आपको। एंड बिफोर सर वी रैप अप विद दिस सेशन, लेट अस हैव वन क्विक रैपिड फायर गेम, जिससे आप लोगों को और मोटिवेट करे और जिससे लोग आपके बारे में भी और जाने। सो कैन वी स्टार्ट? यस। Okay, so one word which describes author Amit Dev. डिसिप्लिन। Yes, that I can see. Okay, your inspiration? ऑलवेज अक्षय कुमार। अरे वाह, क्या बात है! That's really nice choice. Your favorite food? फेवरेट फूड आई मस्ट से राइस। Okay. लोग बोलते हैं Here I'll ask, हाँ, हाँ, here I'll ask या, you this सब question. लोग ये सब लोग सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसलिए राइस इसलिए बोला कि आप खाओ। कुछ लोग होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, कि आप दिन में इतना ग्राम ये लेना चाहिए, इतना ग्राम ये लेना चाहिए। क्योंकि हम ऑफिस गोवर्स है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं अगर ऑफिस में रहूंगा, फिर मैं इतने ग्राम ये खाना, इतने ग्राम ये खाना, मैं तो, मेरा फंडा ही अलग है। आप सब कुछ खाना है, सब इंटेक कीजिए। जो बर्न आउट है वो सुबह उठ के आप बर्न आउट कीजिए, लेकिन जो दिल की चाहत है उसको मत ऑर्गेनाइज। आप खाओ ना, ओ आइसक्रीम खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, लेकिन लिमिट में। लेकिन ये सब आपके हाथ में है कि कैसे आपको ये बर्न आउट करना है, जो भी कैलोरीज आप ले रहे हो। राइस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि रनिंग के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ही जरूरी है। पोटेटो हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ये सब जरूरी है। तो राइस मेरा ऑलवेज फेवरेट है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ। इस राइस जितने भी इंटेक किया मैं उसको। उसे कैसे रिमूव करने वाला हूँ बाहर। सो दैट्स रियली नाइस वन, क्योंकि हियर आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक विद द रैपिड फायर गेम, बिकॉज जब भी सर फिटनेस की या डाइटिंग की बात आती है ना, सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है राइस छोड़ दो। लाइक
राइस भी तो एक ग्रेन है, वो भी तो हमारे खाने में जा रहा है, एंड हमें एक तरीके से कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि इट गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट्स, सो दैट वन थिंग आई लाइक द मोस्ट, कि जो खाना है खाओ, डाइट करने से कुछ नहीं है, बट उसे बर्न आउट कैसे करना है, दैट इज इन योर हैंड। वेरी नाइसली एंड वेरी एक्टिवली यू जस्ट एक्सप्रेस्ड इट आउट, बहुत ही नाइस, एकदम बहुत अच्छा लगा सर। Continuing with the game, your favorite actor, as you said, Akshay Kumar. So, who is your favorite actress? फेवरेट एक्टर्स बहुत सारे हैं अभी। Oh, अभी right now तो कोई नहीं है। शुरुआत में मैं माधुरी दीक्षित एंड काजोल, अभी करेंटली नो वन। nice, nice one. That's really nice choice. So, sir, what do you want your readers to learn and get grasp themselves from this both the books? सी बोथ द बुक्स, दोनों ही किताब जो है डिफरेंट पाथ है। एक में there are lots of exercises which you can do with the home objects in the home itself, and the second book is struggling and inspirational stories of athletes. तो एक में आपको क्या है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट, और दूसरी किताब में ये है कि हाउ टू मोटिवेट। जो आजकल के दुनिया में आपके जो जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आपके ऑफिस में है, लोग यही बोलते हैं कि क्या करेगा, ये करके क्या मिलेगा, ये करके कुछ नहीं होने वाला। हाउ टू कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड जो बोलते हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको जो सेल्फ मोटिवेशनल फैक्टर है वो आपके दिल में आएंगे, और आई एम श्योर दैट कल से ही आप अपना वर्कआउट चालू करेंगे। Hope so. Fingers crossed. You know, I myself always say, कल शुरू करती हूँ योगा, कल करती हूँ, कल ही नहीं आता है. That happens sometimes. Okay, and lastly, one punchline by author Amit Dev. Punchline is fitness is life and fitness is everything. That's really nice one and very motivating one. So we wish you best luck, sir, for your next upcoming book and more books which you are going to write and motivate the readers and the aspirants out there. And thank you so much, sir, for taking out your precious time on Sunday, the weekends, and giving us so much motivational thoughts and words out there to get ourselves fit and more strong. सो प्लीज सर की बात सुनिए, थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए सर से, एंड स्टार्ट बर्निंग आउट। डोंट बी ऑन डाइट, खाते रहिए, बट बर्न आउट वो आपके हाथ में है। दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट सर हैज सेड ओवर हियर, एंड जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं सुना है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू एंड होस्टिंग यू ओवर हियर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बुक्स। Thank you. Thank you. It was my pleasure. Thank you. Thank you, sir. Have a great day, and thank you, all the viewers. Bye bye, sir. Okay. Bye bye, all the viewers. Thank you. Bye.